पर्सन एंड थैंक यू वेरी मच, इन्होंने हमें टाइम दिया। हम इनसे ये सुनना चाहेंगे सबसे Thank पहले you. कि ये कैसे आईटी में कैसे आई, इनका सब्जेक्ट ये क्यों इन्होंने पसंद किया, अदर देन डैट इनकी फैमिली की क्या ख्वाहिश थी ये क्या बने, एंड व्हाट अबाउट हर एक्सपीरियंस इन हर पर्सनल लाइफ। सो प्लीज अमीमा बताइएगा आप। Thank you so much, Farhan, for such a lovely introduction. And I mean, it's a truly an honor for me to share this evening with you. By the way, thank you so much for having me. So, in moments, you have a moments in your life when you start thinking about that, why I am standing here, what happened that I choose this. So that's remind me of the beginning of my roots where I belong from. So I want to tell that I belong to a very, very small town located in a district Jhelum. And I was born in a middle class family with an amazing parents who constantly reminding me that how lucky I am. We are three sisters and one brother, and even that nothing changed for me and my sisters, because we all given equal opportunities and equal rights. And I want to emphasize this equal opportunities because that seems very normal to all of you, but that is an where I've come from and where I belong to, that it is an exceptional, it's actually a privilege. So I want to thank my parents that they gave us that freedom, and they gave us that confidence to move on and to have that life. So where did I begin it? हर साल I'm a very confused personality, by the way. In my whole life career, I wanted to become a different version of me, a different person each year. हर साल मैं कुछ different try करना चाहती हूँ, हर साल कुछ मैं different बनना चाहती हूँ. So from 10th grade till now, हर साल मैंने different चीजें लिखी है. So when I was in 10th, I wanted to become a doctor, but मैंने bio नहीं रखी. I selected computer science as a subject, and I did my metric in it. When I was in college, I wanted to become an aeronautical engineer, but मैं उसके साथ भी continue किया. But I did selected computer science as a subject, and out of nowhere उस time पे मेरा computer science पे कोई interest नहीं था, but out of nowhere मैंने board के exam में computer science के subject में top किया था. अच्छा, माशाल्लाह. So that was a trigger number 1 for me. I मतलब metric or FSC? It was FA. FA में as a अच्छा. subject computer science में मैंने board में top किया था. So it was that is a trigger number 1 for me. So what is the trigger number 2? मैंने फिर bachelor's में भी computer science as a subject को continue रखा, and bachelor में भी मैंने computer science के subject में board में top किया. So I decided कि मैंने FSC में और अपने जो bachelor है उसमें computer science में top किया है, so I decided to continue with this field. So I asked my parents that I wanted to graduate as an IT graduate, and they were okay with it. But due to some reasons, मैं admission नहीं ले सकी university में in an IT, because admissions close हो चुके थे, and I got delayed in getting the admission. So my parents said, instead of wasting a year, why don't you choose another field, maybe an year or two, and then you can switch back to the computer science next year. So I thought, okay. And at that time, there was only one department in the University of the Punjab in which the admissions were open, and that was the Department of Education. So I got admission in the education field, and I started there. अपने आप को मैं यही कहती थी कि I will switch it. मैं सिर्फ एक साल के लिए इधर आई हूँ because I don't want to waste my time. But after an year, I decided, अब इस पे आ गई हूँ तो let's get a degree in it. So I completed my master's in education. After I completed my master, I got admission in MS in education. जब मैं MS कर रही थी तब मैंने वापस पीछे जाने का सोचा कि मेरा IT में इतना अच्छी हूँ, so I should go back there, but फिर मैं नहीं गई. फिर मैंने कहा नहीं, it's better to move forward. Then I completed my MS, और उसके बाद मैंने अपने जो professional career है वो start किया है. So I started my professional career
as a teacher, as a school teacher. 1 year as a school teacher, then as a college intern, and then I got a job in a university. So my first real job is in Virtual University of Pakistan as a lecturer. So IT कहीं पीछे रह गया था इस सब में, IT कहीं गुम ही हो गया था उसमें. But then after, you know, I worked for like 3 years in Virtual University of Pakistan as a lecturer, and meantime I even started my PhD in education. But then I realized, you know, there's something is missing in it. Something is missing. I was not enjoying my job. I was not enjoying my studies. So I asked my parents one day, I wanted to switch my job. They said, fine, your university mein dekho, apply karo. So I think I said to them, you know, not a university this time. I wanted to do a job in an IT sector. So industry. I remember कि मेरे industry में. So my parents said to me कि, you know, it's your choice, but देख लो, मतलब आप बिल्कुल ही field से shift कर रही हो और अभी आप चलोगी और कल को ना हो सका, तो are you ready to वो criticism बर्दाश्त करने के लिए और वो जो सब लोगों की तरह, और what if you will fail? So I said कि I know it's my choice, so I deal with it. So there was a job in that time published in Punjab Information Technology Board. And luckily, I got that job. Luckily, I got that job. I passed the interview, I got that job, and I was become the only person that got a job without having a professional IT degree in my hand. I was no IT degree in my hand. I was a professional educationist at that time, but I got that job. So जब मैंने job start की, honestly, people were written me off several times in it. कि आपको नहीं करनी चाहिए थी ये job. Yeah, you are not fit in here. My colleagues, my friends, my office mates, they all made me realize for 2.5 years that you need to switch. You need to switch. So, but I know कि I was very confused. मैं यही सोच रही थी कि, you know, मुझे switch कर जाना चाहिए. But only thing that I knew at that time that I have the ability to work damn bloody hard, and that's the only thing I did. The only thing I did. So मैंने लोगों की बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया और projects जो मेरा उस टाइम सिर्फ एक ही छोटा सा project मुझे start में दिया था और मैंने अपना सारा time उसी पे लगाया था. And luckily उस project को मैंने उसका scope इतना enhance कर दिया कि it was a province wide rollout project. और बहुत ही successfully हमने roll out किया था. So that was my journey. यहाँ से actually मेरी journey start हुई थी as an IT professional. अच्छा, तो वो health का project था. उसके बाद मुझे it's my 4th year here. 4th year now. Yeah. So उसके बाद मैंने health का एक project deliver किया. उसके बाद there was another project dengue. So you know पंजाब में dengue है और वो control नहीं होता है, and IT is the only thing जो इसको control कर सकती है surveillance activities की तरह करके और you know tracking करके confirm patients कितने हैं, दूसरे कितने हैं, cleanness के ऊपर. So उसका एक proper regime बनाना था system का. वो already in place था, but I had to jump there and I had to revamp that system. It was a very very big system. इसमें multiple 60+ departments पंजाब के involved हैं और 80,000+ users जो इस system को use करते हैं. So that was a flagship project of Punjab Information Technology Board, and I got the opportunity to work in that project as a lead. So I knew that I had to grab this opportunity to prove myself. So मैंने इस opportunity को पकड़ा आया. I proved myself. मैंने इसको lead किया, अच्छे से roll out करवाया. But then उसके बाद भी politics हो गई कुछ मेरे साथ और मुझे लगा कि मैं वाकई यहाँ पे कुछ fit in नहीं कर रही हूँ और मुझे लगा कि you know I need to go back to my days. मैं PhD अब almost complete होने वाली है मेरी, so I need to go back in the education field. So मैंने internally तो मैं decide कर चुकी थी, but I was thinking how to tell my parents and how to tell my family about it. Meantime, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ना डिफरेंट सेक्टर्स हैं. उसमें हेल्थ का भी एक सेक्टर है, यानी हेल्थ के आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे. देन एजुकेशन का सेक्टर है, एजुकेशन के आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो मैंने इंटरव्यू दिया पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में ही रहते हुए एजुकेशन के जो सेक्टर है वहाँ.
और उन्होंने मुझे हैप्पीली लिया बिकॉज एजुकेशनिस्ट मैं वैसे ही थी, तो उन्होंने कहा कि ये आईटी का भी एक्सपीरियंस रखती है, तो वी गॉट मी हियर। सो फिर मैं यहाँ पे आ गई एजुकेशनिस्ट में, आईटी सेक्टर इसमें जो आईटी विंग था एजुकेशन का, एंड नाउ आई एम satisfied. Now I'm happily working here. So now I what actually fit about in the here. episode of politics that you have mentioned? See, so the first thing कि लोगों ने मुझे accept ही नहीं किया. That was the first thing. जब acceptance ही नहीं आई, क्योंकि obviously they are all having very good professional degree with them. लम्स के ग्रेजुएट हैं, यू नो फास्ट के ग्रेजुएट हैं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई डेवलपमेंट साइड का है, सो दे आर ऑल हैविंग देयर आईटी डिग्री, बट ओनली मी, आई वाज द यू नो ऑड वन आउट वाली बात थी कि मेरे पास तो कोई प्रोफेशनल डिग्री थी ही नहीं, और जो थी वो बहुत पुरानी, एक एज अ सब्जेक्ट मैंने सिर्फ कंटिन्यू किया हुआ था, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आई थी, और वो लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था कि ये यू नो इससे नहीं होना है, ये इसमें स्विच ही करना है, एंड दे एक्चुअली यू नो सक्सीड इन दैट. दे एक्चुअली मेड माय माइंड कि आई नीड टू गो बैक टू माय फील्ड जिसमें मेरे पास डिग्री है एंड जो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली. बट बस प्रूफ किया अपने आप को, मेहनत की, और आज उनसे कई ज्यादा ऊपर हूँ और बेहतर जगह पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और जहां तक रही पॉलिटिक्स की बात, सो पॉलिटिक्स की एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी. सेकंड पॉलिटिक्स इस तरह से हुई थी कि जब अप्रूव करने लग गई खुद को, जब पीपल एक्चुअली स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज मी और रिलेटिवली मैं थोड़ी पॉपुलर होने लग गई थी, तो देयर वर यू नो कंपटीशन होता है, वो एक हेल्दी कंपटीशन नहीं रहा, वो एक हेल्दी से डर्टी कंपटीशन पे कन्वर्ट हो गया था. सो वो सपोर्ट नहीं मिली थी, एंड मेरे ख्याल से मैंने अपने कुछ रूल्स बना लिए थे उस सारी पॉलिटिक्स को किस तरह से एड्रेस करना है उस पर. सो मैं रूल नंबर 1 के डोंट लेट देम सी कि यू आर गेटिंग अफेक्टेड. So rule number 1, I mean not this with me, I mean for this is for everyone else, कि अगर आपको अपने वर्क प्लेस में you are facing the politics, so there are few rules that you need to be followed in. So first rule is कि don't let anyone else see that you are getting affected. अगर आप किसी को नहीं शो करवाओगे तो वो आपका आस्ता आस्ता छोड़ देगा, बट अगर आपने अपनी एक भी बात से शो करवा दिया that you are getting affected, तो वो आपको यू नो डबल और तंग करते हैं, फिर और ज्यादा तंग करते हैं. तो दूसरा रूल ये था कि मैंने यही समझा है कि जब भी आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो, यू नीड टू बी ग्रीडी फॉर वर्क. I mean, it's nothing bad in it if you wanted to eat a whole cake, nothing bad, until or unless you are not harming someone or you are not doing anything bad, it's nothing wrong. So be greedy for your work, and be hard. You need to put your hard work on it. Then there is some rule number 3, surround yourself with good person. You know, in your life in your life there are person very बहुत जरूरी है. So in your life there are few persons जो आपके colleagues होते हैं, your family, your friends, your co-workers, your colleagues, they are your biggest influencer in your journey to success. So you need to surround yourself with good people who do not stab you at your back. Exactly. So exactly. So that was the rule number 3. Then there was many other rules, but there were some 3 rules which I followed, and I want everyone else कि ये 3 rules हमेशा याद रखें. पॉलिटिक्स को हमेशा सेकेंडरी रखें, उसको प्राइमरी मत बनने दें. फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि ये पॉलिटिक्स तो हर जगह और ये हमेशा रहेगी. नेपोटिज्म है, चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में बहुत सारी चीजें. एग्जैक्टली. I mean, और जब आप काम करने वाले बंदे के लिए कभी काम की कमी नहीं होती. That is it. तो कभी कमी नहीं होती है. So just keep working. और अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपके लिए कभी काम की कमी नहीं आएगी. And that's exactly what I did. I kept working. बिल्कुल ठीक. So जो प्रोजेक्ट्स थे जो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किए, उनका थोड़ा सा बताइएगा कि लाइक वो हेल्थ सेक्टर में इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है, क्या कोई सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस करवाया? अच्छा, वो जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो हेल्थ सेक्टर के भी हैं, वो एजुकेशन सेक्टर के भी हैं. ठीक हो गया. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ सेक्टर में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट एंड टर्शियरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट. तो ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो हेल्थ को देख रहे हैं, और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए काम कर रहा है एज एन आईटी पार्टनर. सो जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मैंने किया था उसमें एक तो डेंगू था,
उसमें ये है कि पंजाब के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी, आई मीन इट्स अराउंड आई थिंक 60+ डिपार्टमेंट्स, वो सब के सब इस प्रोजेक्ट का पार्ट है डेंगू का। सो ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर टू कॉम्बैट अ डेंगू। और उसमें पंजाब आईटी बोर्ड का रोल ये था कि सब डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लाके उनको रजिस्टर करके, उनके यूजर्स को रजिस्टर करके ये मेक श्योर करना कि तमाम एक्टिविटीज और तमाम सर्वेलेंस की जो एक्टिविटीज है, यानी प्रिवेंशन एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं, वो ठीक तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और अगर वो नहीं हो रही हैं तो एक हमारा जो सिस्टम है वो एक प्रिडिक्शन दे देता है और अलर्ट्स जारी करता है कि इस साल एपिडेमिक आ सकता है। क्योंकि इस हर एक एसओपीज बने हुए हैं डेंगू को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में, कि घर के अपने इंडोर सर्वेलेंस होनी चाहिए है, आउटडोर सर्वेलेंस होनी चाहिए है, और ये सर्वेलेंस हम लोग एक्टिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं। और वो मॉनिटर करने का यही तरीका है कि हमने उनको एक एप्लीकेशन बना के दी हुई है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें वो घरों में जाते हैं और जो भी उनकी लोकेटेड या टारगेट प्लेसेस होती है वहां पे जाते हैं सर्वेलेंस के लिए, जहाँ पे अनहाइजीन चीजें पड़ी होती है, पानी खड़ा हुआ होता है या गार्बेज होता है, उसकी पहले पिक्चर लेते हैं बिफोर, और फिर उसको क्लीन करके उसकी आफ्टर की पिक्चर भी लेते हैं। सो ईच यूजर, देयर आर 80,000 यूजर्स, 80,000 यूजर्स डेली 30 एक्टिविटीज इस तरह की करते हैं। अच्छा। ऑल ओवर द पंजाब, अक्रॉस पंजाब। इसमें ज्यादा पेरिफेरल एरिया शामिल है जी? इसमें ज्यादा पेरिफेरल एरिया शामिल है या सारे मेन सिटीज वगैरह भी, ये सारे भी शामिल हैं? सो एक्चुअली इसमें इस तरह से है कि हम लोगों ने कैटेगरीज बना दी है। कुछ एरियाज को हम लोग ने हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे कि टायर शॉप हो गई है, जैसे कि स्कूल्स हो गए हैं, कॉलेजेस हो गए हैं। कुछ एरियाज हॉटस्पॉट डिक्लेयर हैं जहाँ पे तो इन्होंने लाजमी जाके एक्टिविटी करनी है। अदर देन दैट, अगर हमें कहीं से कंफर्म पेशेंट आ जाता है या ऐसा पेशेंट जिसे लग रहा होता है कि इसको डेंगू हो सकता है, जिसे हम प्रोबेबल पेशेंट कहते हैं, तो हम उनके घरों में भी जाके केस रिस्पॉन्स करवाते हैं। यानी ये जो यूजर्स हैं उनके घर में जाते हैं, अवेयरनेस देते हैं, उनको पैम्फलेट्स देते हैं, फ्लेयर्स देते हैं, अवेयरनेस उनके करते हैं, उनके घर को पूरा चेक करते हैं। IR स्प्रे है जो उनके घर में करते हैं, घर के अंदर भी और आसपास घर जो 49 हाउसेस बनते हैं उन सब घरों भी जाते हैं। सो आउटडोर फोगिंग होती है, आयर स्प्रे होती है। सो ये हर कंफर्म्ड और प्रोबेबल केस में कर रहे होते हैं हम लोग। तो इस तरह से, और ये सारी चीजें हमारे डैशबोर्ड में मॉनिटर हो रही होती हैं। सो ये एक पूरा सिस्टम बनाना और सब डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेके आना वाज अ बिग बिग टास्क, क्योंकि इसमें हर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। उसके बाद इसका ऑपरेशंस को इस तरह से हैंडल किया जाता है कि डिफरेंट कमेटीज बना दी गई। कमेटी सबसे पहले तो एक टाउन लेवल पे होती है जिसको असिस्टेंट कमिश्नर चेयर करता है। वो अपने टाउन से रिलेटेड जितने भी यूजर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। लेट्स सपोज कि अगर टाउन के किसी एक एरिया में एक भी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कोई मसला आ सकता है। वो यूजर्स को पकड़ते हैं कि ये जगह कैसे रहेगी कि आप लोगों ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। फिर ऐसे एरियाज पकड़ना। फिर इसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है जिसे जो डिप्टी कमिश्नर है वो चेयर करता है। डिप्टी कमिश्नर भी फिर अपने जितने भी यूजर्स उसके अंडर आते हैं उन सब की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। और ये डेली बेसिस पे हो रहा होता है। पीक टाइम पे डेली होती है ये मीटिंग, और अगर पीक ना हो तो फिर ये ट्वाइस अ वीक में भी होती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इवन एट दिस टाइम अभी आपकी बात को मैंने किया है। आई वांट टू से कि आप कमेटीज वर्किंग सर्टिफाइड है ये सिस्टम है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब इट मींस दे आर रियली वर्किंग। दे आर वर्किंग, अदरवाइज तो डेंगू का एपिडेमिक हर साल आ जाए। ये कंट्रोल ही इस वजह से हो रहा है कि अभी क्योंकि डेंगू का सीजन नहीं है। डेंगू का सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर से आगे। अभी डेंगू का सीजन नहीं है, बट एक्टिवली ये मीटिंग्स हो रही हैं और लोगों के घर घरों में जाके अवेयरनेस ये करवाई जाती है। सर्वेलेंस की एक्टिविटीज और प्रिवेंशन की एक्टिविटीज इस टाइम फुल जोर पे है। उसका रीजन यही है कि ये हाई टाइम है। अगर इस टाइम पे प्रिवेंशन की एक्टिविटीज या सर्वेलेंस ना की गई तो फॉर श्योर है कि डेंगू का एपिडेमिक आ जाएगा। सो दिस इज द टाइम। तो हम लोग कहीं पे भी, एक होता है डेंगू का मच्छर, एक होता है लार्वा बनना। वो लार्वा कहीं पे भी अगर साफ पानी होगा पड़ा हुआ तो उसमें वो लार्वा बन जाता है, और लार्वा बन जाएगा तो वो डेंगू की अफजाइश का बायस बनता है। तो इस वजह से हम लोग अभी से ही कुछ टाइम पहले ही जो प्रिवेंशन एक्टिविटीज है वो स्टार्ट करवा देते हैं ताकि कहीं पे भी एपिडेमिक ना आ सके। और अगर एपिडेमिक आने का चांस हो जाता है तो सिस्टम अलर्ट्स जनरेट करके अथॉरिटीज को और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर देता है कि एपिडेमिक आ सकता है।
So this is the, मतलब this is a very सक्सेसफुल सिस्टम। सिस्टम को बहुत सारा इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि और किसी भी कंट्री में आई डोंट थिंक सो कि डेंगू का कोई भी सिस्टम इतना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। आई मीन पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो सक्सेसफुली रही है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तमाम डिपार्टमेंट्स, ऑल डिपार्टमेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं फॉर दिस कॉज। पहले डेंगू था, अब ये कोविड में भी साथ ही काम किए। हाँ, इट्स गुड। तो ये आई मीन दिस इज, ये कोविड में भी किया, बट कोविड का सिस्टम अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ। बट डेंगू आई मीन ये 2012 से चल रहा है और 2012 से ही सिस्टम इन प्लेस आ गया था। तो अब बाय द टाइम ये सिस्टम इतना मैच्योर हो गया है कि इसमें इतने ज्यादा यूजर्स हैं और हर एक यूजर को मॉनिटर करना, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, फिर ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन लेवल पे, फिर सिटी लेवल पे, हर तरह से मॉनिटर किया जाता है। और कमेटीज है, हर वीक एक मीटिंग होती है जिसे कहते हैं CCM, कैबिनेट कमेटी मीटिंग, जिसे चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर हेल्थ शेयर करते हैं। वो तमाम डिपार्टमेंट्स को बुलाते हैं और तमाम डिपार्टमेंट से उनकी रिपोर्ट तलब की जाती है उसमें। तो ये हर वीक होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अदर देन दैट इसमें जो जी प्लीज। सो ये हेल्थ का प्रोजेक्ट था। Then there are other project जो मैं एजुकेशन साइड के कर रही हूँ। सो एजुकेशन साइड में बेसिकली हमारे पास दो मेन डिपार्टमेंट्स है, एक स्कूल एजुकेशन है और एक हायर एजुकेशन है। तो स्कूल एजुकेशन में जो हमने किया है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में, उसने स्कूल एजुकेशन के जितने भी स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स में कोई अराउंड आई गेस 48,000 प्लस स्कूल्स हैं इस टाइम। 48,000 इज अ बिग नंबर। हर स्कूल के हर बच्चे को एनरोल किए सिस्टम पे, हर स्कूल की हर टीचर की अपनी प्रोफाइल बनाई है, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी प्रोफाइल बनाई है, और मतलब इतना बड़ा सिस्टम और वो बन चुका है, इतना मैच्योर सिस्टम। उनकी डेली अटेंडेंस कैप्चर होती है वहां पे, उनकी टीचर्स की परफॉर्मेंस को कैप्चर किया जाता है वहां पे। इट्स मतलब देयर इज नो गोस्ट टीचर्स एनीमोर। आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है जब टीचर जो है स्कूल एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। ड्यू टू द सिस्टम के हमने जो इसको डिजिटलाइज करके दिया है, MES जाते हैं स्कूल की मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग भी वो लोग पिक्चर की एविडेंस के साथ सिस्टम में सेव करवाते हैं। जियो टैग होता है उनका कि वो लोग एक्चुअली स्कूल्स में गए हैं या नहीं गए हैं। फिर जो टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही होती है उसकी इवन जो क्लास में लेक्चर है उसकी डिलीवरी को भी ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू एन एप्लीकेशन। अच्छा, कि उसने कितनी अच्छा डिलीवर किया, क्या SLOs थे यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या थे, उसने कितने अच्छे से इसको अचीव किया है। तो उन सब के लिए सिस्टम इन प्लेस है। यानी स्कूल एजुकेशन ऑलमोस्ट आई गेस बल्कि मोर देन 80% डिजिटलाइज कंप्लीटली हो चुका हुआ है, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ टीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोसेसेस में मेरा मकसद ये है बताने का कि हमने इस बहुत ही आसान बना दिया टीचर्स के लिए। पहले जो टीचर्स हैं उनके ट्रांसफर में बहुत इश्यूज होते थे, बहुत ज्यादा रेफरेंस लगते थे, सिफारिशें लगती थी, और इतने ज्यादा स्कूल्स है, 48,000 स्कूल, टीचर्स भी लाखों में है। तो इनके कोई 4 लाख के अराउंड तो टीचर्स हैं स्कूल के। सो इनकी ट्रांसफर में बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे। हम लोगों ने इनको E-ट्रांसफर सिस्टम बना के दिया जिसके थ्रू वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं और फिर उनको अपने रिस्पेक्टिव जहाँ पे भी स्कूल की वैकेंट पोजीशन होती है वहां पे पहुंचा दिया जाता है। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया ये सिस्टम, जो आज से पहले नहीं था कभी भी। सो ये इस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या प्रीवियस गवर्नमेंट ने चलाया हुआ था? सो ये जो स्कूल एजुकेशन में है ये चल प्रीवियस गवर्नमेंट से रहा है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स किए हैं। यानी स्टार्ट तो ये पहले से है, सो उसमें इनिशिएटिव्स करते हैं। जैसे इस बार गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव इसमें लिया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी पंजाब में नहीं पता कि प्राइवेट स्कूल कहाँ कहाँ पे हैं और कितने प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड हैं, और खासतौर के पब्लिक यानी पेरेंट्स को ये नहीं इन्फॉर्मेशन कि कितने स्कूल लाइसेंस्ड हैं, कितने उनके घर के नियर बाय प्लेसेस में हैं, उन स्कूल्स की परफॉर्मेंस क्या है। तो ये गवर्नमेंट है, इन्होंने प्राइवेट स्कूल के रजिस्ट्रेशन के ऊपर काम किया। सो अब उस पे रजिस्ट्रेशन पे काम हो रहा है, और मेरे ख्याल से इन अ मंथ, लेस देन अ मंथ, हम लोग पेरेंट्स के लिए भी एक एप्लीकेशन रोल आउट करेंगे जिसमें उनको अपने घर के नजदीक तरीन इलाके में जो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और उनकी क्या क्या परफॉर्मेंस है, लाइसेंस है या नहीं है, उनकी तमाम तरह इंफॉर्मेशन वो सब नजर आ रहा होगा, ताकि उनको हेल्पफुल हो जाए कि मैंने अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजना या नहीं भेजना। ठीक हो गया। यानी इसमें दोनों तरफ है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, ना सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए बल्कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और उनके लिए भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने स्कूल एजुकेशन में जो डिजिटलाइजेशन का काम किया है, इट टुक अराउंड 3 years। ओह 3 साल ओके। लगे स्कूल एजुकेशन को डिजिटलाइज करने में। और स्कूल एजुकेशन की जो सक्सेस स्टोरी है, अब इस साल हम लोग इसको हायर एजुकेशन पे लेकर जा रहे हैं। तो ठीक। इस ईयर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ प्रोजेक्ट किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, PC1 हुआ है, जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हमने तमाम वो प्रोजेक्ट्स जो स्कूल एजुकेशन के लिए किए थे, हायर एजुकेशन में वो करने हैं, in terms of their student enrollment, their attendance, teacher profile, their leave system, inquiry module, e-transfer, monitoring of colleges, each and everything we have to do it for higher education department. ठीक। So हम अभी start colleges से कर रहे हैं, और I guess in next 2 months ये system roll out हो जाएंगे successfully। अभी हम लोगों ने already एक data entry open की हुई है पंजाब के तमाम कॉलेजेस के लिए। हमने एक एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च की है लास्ट वीक ही, जिसमें हमने डेडलाइन दी है तमाम कॉलेजेस को कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम सैंक्शन पोस्ट और उन सैंक्शन पोस्ट में जितने भी टीचर्स हैं काइंडली उनको इनरोल कर दें। जब वो इनरोल कर देंगे तो ये इंफॉर्मेशन हम पब्लिकली दिखा रहे होंगे, एवरीवन कैन एक्सेस कि इतने कॉलेजेस हैं, इतने कॉलेजेस में इतनी सीट्स हैं, इतनी सीट्स पे ये इतने टीचर्स फिल्ड हैं। सो ये पब्लिकली अवेलेबल होगी। इस टाइम स्कूल एजुकेशन के लिए भी जितना हमने काम किया, दैट इज पब्लिकली अवेलेबल टू ऑल, एनीवन कैन सी, और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं वहां पे। बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, सो दीज आर द गुड इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज। इसमें मेरे ख्याल में हमें अगर इसको मजीद अच्छा फोकस किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर पे भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी बिल्कुल, इरादा हमारा यही है, पहले हम पब्लिक को इकट्ठा कर लें जी जी और उसमें इम्प्लीमेंट कर लें, क्योंकि दैट इज पब्लिक का नंबर कम है, पब्लिक कॉलेज इन पंजाब। बिल्कुल ठीक हो गया। सो प्राइवेट का नंबर थोड़ा बिग नंबर, हम पब्लिक के बाद हम लोग नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो प्राइवेट की तरफ जाना है। ओके। और अब तो वैसे भी जो एजुकेशन में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स आ गए हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हो रही है, तो आई होप कि सिंगल नेशनल करिकुलम अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये जो पब्लिक प्राइवेट का एक जो डिस्पैरिटी है, ग्लोइंग डिस्पैरिटी, शायद इसमें भी हमें एक कमी देखने को मिले। बिल्कुल ठीक है। सो हाउ यू फील के जो हमारा इस वक्त दूसरा जो एक्सपेक्ट है जिसमें हमारी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेते हुए अगर हम बात करें तो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, बट आई वांट टू हाईलाइट कि आप समझती हैं कि इस वक्त आईटी की इस दौड़ में हमें कुछ ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है इसकी वजह से कुछ बढ़ गई है। फिर उसके अलावा जो मैं कवर करना चाहूँगा इन एकेडमिक कंसर्न, क्योंकि आपका वो भी एक्सपीरियंस रहा है जैसे आपने शेयर किया एकेडमिक्स के साथ भी। सो हमारी जो न्यू जनरेशन है या जो नई हमारी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, वो आ रही हैं, उनके मेल्स भी हैं, उसमें इसमें आप क्या समझती हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रोल है, इन अदर वर्ड्स क्लियरली इफ आई से कि हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ या वो सारी चीज़ें हैं, उनको आप कैसे देखती हैं कि ये हमें कैसे यूज़ करना है बेसिकली आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि इस वक्त मीडिया है हमारे पास, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम समझते हैं कि वो नेगेटिव भी आ रही हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस पर कुछ काम हो रहा है? अच्छा, मैं इसमें पहले तो के लास्ट 2 years में टेक्नोलॉजी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, क्योंकि कोविड, पहले भी आईटी का रोल सिग्निफिकेंट रहा है, बट ड्यू टू द कोविड इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। कोविड ने एज अ कैटलिस्ट का काम करते हुए इसका जो रोल है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट कर दिया है, एवरीवन, फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर एनी अदर पर्सन। सो इसमें और हर चीज के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब टेक्नोलॉजी का आना अपने साथ जो एडवांटेजेस लेके आता है, वो अपने साथ बहुत से डिसएडवांटेजेस भी लेके आया है, बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। इसको यूज करना ज्यादातर के लिए मुश्किल है। जैसे अगर मैं बात, एक तो इसके अपने कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आते हैं कि अगर आपने छोटे बच्चों के हाथ में टैबलेट्स दे दी और उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराना करती, एंड वंस दे विल यूज टू इट, तो फिर वो तो कुछ भी करेंगे, वो तो कुछ भी यूज करेंगे। तो इसमें जो रोल सबसे ज्यादा
प्ले कर सकते हैं वो पेरेंटल रोल है। ये पेरेंट्स को देखने की जरूरत है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएं मोबाइल के ऊपर या टैबलेट के ऊपर, वो मेक श्योर करें। आई मीन मैं इस चीज के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि बच्चों को मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर रखा जाए। आई मीन आई एग्री कि मैनी पेरेंट्स से कि बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, हाँ लेकिन हाँ आई एम अगेंस्ट इट। बच्चों को हाँ, बिल्कुल जरूर दे उससे भी एक फोन, नेगेटिविटी उनको आती टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस जरूर कराएं, क्योंकि नेक्स्ट जो एरा आ रहा है वो टेक्नोलॉजी का ही आ रहा है। है। बट हाँ। उसमें टाइम रखें, टाइम लिमिट रखें, पेरेंटल कंट्रोल रखें, टाइम लिमिट रखें। और इवन अगर आपने पेरेंटल कंट्रोल रखना भी नहीं है तो एटलीस्ट मॉनिटर जरूर करें कि आपके बच्चे के पास अगर सारा दिन फोन था तो उसने क्या देखा है इसमें। सही है, सही। सो ये इस बच्चों के लिए तो इसमें पेरेंटल कंट्रोल का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हुई और टीचर्स ने भी इसमें रोल प्ले किया है, ये बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि स्टूडेंट फेस टू फेस टीचिंग और फेस टू फेस लर्निंग इज इंटायरली डिफरेंट। अब उस बिल्कुल चीज को एक पैराडाइम शिफ्ट बना के आईटी के रोल को या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को ले आना और उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि बच्चे उतने ही अच्छे अंदाज से पढ़ सकेंगे या सीख सकेंगे जितना वो फेस टू फेस में सीख रहे थे, तो बिल्कुल ये मुश्किल है। ये वाकई ही मुश्किल है, ये टीचर के लिए भी मुश्किल है और स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल है उतना ही। ऐसे ही। बट ये इसको इस बट सो द थिंग इज कि इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर कोई, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन कराने की भी अपनी एक ट्रेनिंग्स होती है। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में काम किया जहाँ पे ऑनलाइन ही होता था हाँ ज्यादा। हाँ उसमें वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड होते थे, ऑडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड होते थे और स्टूडेंट्स को एलएमएस के थ्रू पढ़ाया जाता था। सो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर एक ऐसे अनएक्सपीरियंस टीचर को आप एक दिन एलएमएस पढ़ा के ऑनलाइन क्लास के लिए बिठा देंगे तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है और बच्चों के लिए भी समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें एक तो स्टूडेंट पैसिव हो जाता है, उसका पता नहीं चलता कि उसको एक्टिव कैसे रखना है। और अगर एक्सपीरियंस टीचर नहीं होगी तो उसको बिल्कुल उन टूल्स का नहीं पता होगा जो एलएमएस में यूज किए जा सकते हैं या एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग के दौरान एक्टिव रखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। सो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है इसके लिए, एट एवरी लेवल, एट ईच लेवल। ओके, so now our talk is going towards ending points and या जो अब हम पर्सनली कुछ पूछना चाहेंगे कि जैसे आप बीइंग जो मेरा जो प्लेटफॉर्म है आपको आइडिया होगा इट्स वुमेन एंड लीडिंग रोल एज वेल। सो एज फीमेल आपके पर्सनली आपके क्या लाइफ गोल्स हैं, व्हाट यू फील कि आपने वो अचीव करने के लिए किए हैं और करने के लिए आपके लाइक योर सिलेक्शन अबाउट योर मैरिड लाइफ, योर ऑल एस्पेक्ट्स आप कैसे लेती हैं और हमारे दूसरे जो फीमेल्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं कि उनको अपनी लाइफ में, क्योंकि अदर एस्पेक्ट अनफॉर्चुनेटली माय सोसाइटी में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारे पेशेंस टॉलरेंस दीज ऑल आर द फैक्ट्स हमारे रिलेटेड हैं जिसमें मेल्स भी शामिल हैं। हम इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ फीमेल्स के लिए बिल्कुल। करेंगे, बिल्कुल मेल्स भी शामिल है। सो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? So there's only one sentence that sums up all, and that is कि लड़कियों को लाइफ को सिंपल लेना चाहिए। लाइफ इज सिंपल, उसमें मुश्किलें हर किसी लड़की के लिए आती हैं। कुछ लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, कुछ की आइडल शादी होती है। आई मीन आई गॉट मैरिड एट अ वेरी वेरी यंग एज। आई अ गर्ल बिलोंग टू अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन, middle class family, modern parents, got married at a very very young age, but I didn't continue learning. I continued learning, I didn't stop it. लाइफ तो कैरी ऑन रहती है, लाइफ तो चलती रहती है, एंड लाइफ इज सिंपल। उसको जितना सिंपल लेंगे, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे, नहीं सोचेंगे तो वो नहीं होगी। और शादी किसी चीज का एंड नहीं होता। लड़कियों में एक ये ऑब्वियसली मैंने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत देखा है कि शादी हो जाती है तो ज्यादातर जॉब छोड़ देती हैं। अगर नहीं भी छोड़ती हैं तो वो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं जितना वो पहले कर रही होती हैं, ड्यू टू एनी रीजन। ऑब्वियसली घर की और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, फिर बच्चे हो जाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। बट यू नीड टू मैनेज एंड ट्रस्ट मी, एनीथिंग कैन बी मैनेजेबल। मैं यही कहती हूँ, इफ आई कैन डू दैट then anyone can else. Anyone can else. So I have a 5-year-old kid. मेरा एक बेटा है 5 साल का और मैंने उसके साथ भी काम किया है। So your husband is also in बच्चे IT? वैल्यू आप पास कर दी थी, can you please say it again? मैं कह रहा हूँ आपके हस्बैंड भी आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं?
नहीं, वो आईटी से बिल्कुल भी रिलेटेड काम नहीं कर रहे, इसीलिए अच्छा, उनका समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। व्हेन आई गॉट वर्क लेट नाइट आवर्स में कभी काम आ जाना, या लेट वर्किंग आवर्स में, सो हाँ, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में होते हैं एज एन असिस्टेंट। अच्छा, 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 ठीक हो गया। सो आपका यही मैसेज है कि हमें हर तरह जो है वो स्पेशली फीमेल्स को मैनेज करना चाहिए, और क्योंकि एक चीज़ पे मेरा ख़्याल है, व्हाट आई बिल्कुल फील के इश्यूज़ तब आते हैं जब हम एक चीज़ की तरफ ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं। लाइक अगर हम बिल्कुल आउटडोर हो गए हैं और अपने घर को नहीं देख रहे तो भी इश्यू है, और अगर बिल्कुल हम तो घर को देख बैलेंस रहे हैं, बैलेंस लाइफ इज बैलेंस होना सिंपल, चाहिए। लाइफ इज सिंपल, और इसको एग्ज़ैक्टली, बैलेंस रखने की जरूरत है। कभी कभी कुछ टाइम आता है जब आपको अनबैलेंस करना पड़ जाती है चीजों को, बट यू नीड टू आपको प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो प्रायोरिटी सेट कर लेंगे तो लाइफ विल कंटिन्यू। और बिल्कुल बच्चे बच्चे वैल्यू देते हैं। आई मीन आई आई नो कि मैं जब बाहर जाती हूँ और वापस आती हूँ घर और मेरा बेटा वेट कर रहा होता है, सो ही वैल्यूज मी कि मैं बाहर जाती हूँ, मैं काम करती हूँ। और बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, बच्चे जी, अपने जी, पेरेंट्स के हर एक्शन से सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही। जरूरी नहीं है कि उनके साथ आप लोग हर टाइम स्पेंड करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो आप अपने एग्ज़ैक्टली, बच्चे के साथ दिन में चाहे 2 घंटे गुजारे, वो क्वालिटी टाइम गुजारे। पूरा बिल्कुल दिन भी गुजार रहे हैं और उसमें कुछ क्वालिटी नहीं है, तो दैट्स ऑल इन वेन। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच नीमा, आपने बहुत अच्छी थैंक यू। हमें covering the regarding government policies, government projects as well as the IT role, और other than that आपने जो experience अपना share किया उसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा thankful हैं। Inshallah next time I would थैंक also यू। like to invite you in panel as well. We always do different sessions for the awareness as well as to So interact. I would like to request you to please इसको किसी weekdays में करें, क्योंकि I would like to have all my colleagues on board in it। और ऑब्वियसली वो भी फिर कुछ टॉक करना चाहेंगे आपके साथ, जी, जी, क्योंकि जी, अभी बिल्कुल। ज्यादातर का ये आ रहा था कि इट्स अ वीकेंड एंड वी हैव अ बिजी स्केड्यूल। सो आई ऐसा नो कि ही। यू आर बी ऑल अवेलेबल ओनली ऑन वीकेंड, बट अगर कभी आप फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, इफ यू कैन बी Right, right. अवेलेबल एनी Okay, टाइम, I जस्ट will लेट मी consider नो। it. I will. Thank you so much, Nima. Inshallah. एंड थैंक यू टू यू एज वेल। थैंक यू।